Hello students, welcome to our Java session. Today we are going to understand about Java operators. In this tutorial you will learn about different type of operators, their syntax and how to use them with the help of examples. अब आप सब जानते हैं जब भी हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, whenever we want to perform some operations, then we use operators like arithmetic, assignment, relational, logical, unary and bitwise. Okay, and with the help of these operators we write a program. Operators are symbols that perform operations on variables and values. ये दो ऑपरेंड्स के बीच में होता है ऑपरेटर और उनकी वैल्यूज़ के ऊपर ये ऑपरेट करता है, उसके बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारा जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अब ये सिंपली आपके क्या हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ओके, डिवीज़न एंड मॉड्यूलस. ठीक है, अगर आपने एडिशन परफॉर्म करनी है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, तो आप सब ये किस तरह से करेंगे वो हम प्रोग्राम में आगे देखेंगे. सो द प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड टू वेरिएबल्स a and b. Similarly, there are various other arithmetic operations that perform their operations and how we will see in the program. For example, this is our first program, how to use arithmetic operators. Now you are watching, there are two variables with values 12 and 5. A is assigned value 12 and B is assigned value 5. Now, after declaring class main, we are declaring variables. Okay. Now, firstly, we will perform addition with the help of this statement system.out.println, and we want to get value of addition operation, so we will write like this. And when we want value of negative operator, then write like this. Now about multiplication operator, this statement, division this and modulus this. In division like this you write, and if we want to get remainder, then we use modulus operator, then we get remainder. Okay, so write this program and see what you result get. Like if we have two variable 12 and 5 with values, then first we get 17 in addition, in subtraction we get 7, in multiplication we get 60, 12 into 5 and 12 by 5. When we do division, then we get 2. Okay, 2 is our quotient. Now we get in modulus we get 5 to the 10 to remainder. Okay, it is our remainder. Now this is our division operator, like this we will write. Okay, use the division operator with two integers, then the resulting quotient will also be an integer. जो आपका क्वेश्चन आएगा वो भी आपका इंटीजर में होगा. अगर आपका एक ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट में है तो आपका जो है रिज़ल्ट वो फ्लोटिंग पॉइंट में होगा. जैसे कि ये एग्जांपल है, जब दोनों इंटीजर हैं, देखो 9/2 तो आपका 4 आया, 9.0/2 4.5 आया फ्लोटिंग में, 9/2.0. एक भी ऑपरेंड अगर आपका फ्लोट में है तो आपका आंसर फ्लोट में आएगा. ठीक है, लाइक दिस. अब हम मॉड्यूलस का चेक कर लेते हैं. मॉड्यूलस में क्या है, इट कंप्यूट्स द रिमाइंडर. ओके, a इज इक्वल टू 7 इज डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 4. तो क्या होगा आपको रिमाइंडर गेट हो गया 3. द मॉड्यूलस ऑपरेटर इज मेनली यूज विद द इंटीजर. ये आपका ज़्यादा इंटीजर्स के साथ काम करता है. नाउ नेक्स्ट इज योर सेकेंड टाइप, जावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स.
Assignment operator are used in Java to assign values to variable. Okay, is equal to is the assignment operator. It assign the value on its right to the variable on its left. अब आपका एग्जाम्पल है int age. एज हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी डेटा टाइप int है और इसको हमने असाइन वैल्यू की 5. ओके, 5 इज असाइन टू द वेरिएबल एज. अब इस तरह से ये कौन कौन से आपके ऑपरेटर्स हैं, इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, स्टार इज इक्वल टू, और ये डिवाइड इज इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इज इक्वल टू. और आप इस तरह से इसको लिखेंगे प्रोग्राम में, आप इस तरह से यूज़ करेंगे. ये आपका प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं एक एक को हमने 1 बाय 1 यूज़ किया है और उसके बाद रिज़ल्ट हमारा इस तरह से आया. नेक्स्ट है जावा रिलेशनल ऑपरेटर्स. फर्स्ट हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, देन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, थर्ड हमारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स. फॉर एग्जांपल, चेक इफ़ ए इज़ लेस देन बी. अगर हम चेक करना चाहते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में, ठीक है, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, रिलेशनल, जो कंपैरिजन्स करेंगे. लेस देन ऑपरेटर इज़ द रिलेशनल ऑपरेटर. इट चेक इफ़ ए इज़ लेस देन बी और नॉट, तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है. अब इसमें कौन कौन से हैं आपके, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू साइन, ग्रेटर दैन, लेस देन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. अब हम देखना चाहते हैं कि क्या 3 5 के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स वैल्यू, ठीक है. क्या 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो आपको क्या रिटर्न हुआ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, वो इक्वल नहीं है, तो ट्रू आया. 3 इज़ ग्रेटर दैन 5, नो, तो इट रिटर्न फॉल्स. 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, येस, ट्रू. 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5. अब देखिए ये ना ही ग्रेटर है और ना ही ये इक्वल है, तो फॉल्स. अब 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो 3 लेस है ना 5 से, ठीक है, और पर इक्वल नहीं है, ठीक है. तो इसने क्योंकि लेस है ये 5 से, इसने क्या आपको रिटर्न किया, ट्रू. अब इस पर एक प्रोग्राम है, ये सब आप 1 बाय 1 लिख के देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट है आपका जावा यूनरी ऑपरेटर्स. अब ये क्या है, जब हमने एक ही ऑपरेंड के साथ काम करना हो. बाइनरी होते हैं 2 ऑपरेंड के साथ, जो हम पहले पढ़ रहे थे वो सब बाइनरी थे. अब हमने एक ऑपरेंड के साथ काम करना है. यूनरी ऑपरेटर्स आर यूज विद ओनली 1 ऑपरेंड. फॉर एग्जांपल प्लस प्लस. ओके, इट्स अ यूनरी ऑपरेटर दैट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, दैट इज प्लस प्लस 5 विल रिटर्न 6. प्लस प्लस 5 का क्या मीनिंग हो गया, 5 प्लस 1, और ये रिटर्न आपको वैल्यू क्या कर रहा है, 6. अभी इसमें क्या यूनरी प्लस है, यूनरी माइनस है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट है, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है. नेक्स्ट है, अगर आप देखिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये हैं आपके प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. इट इन प्लस प्लस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है, एंड माइनस माइनस डिक्रीज इस वैल्यू बाय 1, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1. अब जैसे कि अगर आप लिखें एक वेरिएबल लिया आपने नम, इसकी वैल्यू है 5. अब आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर से यूज़ करना है, तो आप आगे इसके लगा देंगे प्लस प्लस नम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, 5 प्लस 1. ओके, ये आपका प्रोग्राम है, इसमें हमने यूज़ करके दिखाया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी. और देखिए ये आपकी वैल्यूज़ आई हैं, आपके पास a 12 था और b भी 12 था, तो आफ्टर इंक्रीमेंट a की वैल्यू 12 प्लस 1 13 आ गई, और b की वैल्यू डिक्रीमेंट में 12 माइनस 1 हो गया और 11 आ गया. अब ये तो था प्रीफिक्स हो रहा था, आगे लग रहा था ये ऑपरेटर वेरिएबल से. अब अगर आपने पोस्ट फिक्स करना है तो इस तरह से है a प्लस प्लस एंड b प्लस प्लस.
नेक्स्ट हैं आपके जावा बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब इसमें इन्होंने कॉम्प्लीमेंट करके दिखाया आपको। 35 का हमने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लिया तो इस तरह से आया बाइनरी में। ओके, अब इसमें कौन कौन से हैं आपके, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट, बिटवाइज एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। अदर हैं आपके इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स। अब टर्नरी ऑपरेटर्स क्या है? जैसे कि आपकी इफ देन एल्स स्टेटमेंट होती है, ठीक वैसे ही ये काम करता है कि अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ये परफॉर्म हो जाए, अगर ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो नेक्स्ट आपका लॉजिक परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका लिखते हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2। अगर आपका expression true है, if the expression is true, expression 1 is assigned to the variable, otherwise if it's false then expression 2 is assigned to the variable। अब ये आपके हैं, इस पर प्रोग्राम int February days is equal to 29। ठीक है, तो क्या होगा, रिज़ल्ट हमने स्ट्रिंग में सेव किया, स्ट्रिंग डेटा टाइप दी, और क्या हुआ आपका February days जो वेरिएबल है हमने लिखा कि क्या ये 28 डेज़ होते हैं इसमें, तो अगर होते हैं तो नॉट अ लीप ईयर, अदरवाइज़ लीप ईयर, तो फिर आपका परफॉर्म हो जाएगा। अब ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, इसका आंसर आपको आया लीप ईयर, क्योंकि आपके तो 29 डेज़ होते हैं ना लीप ईयर में, तो ये फॉल्स होगी कंडीशन, तो आपका क्या हुआ, आंसर आया लीप ईयर। Okay, I hope you understand about all these operators, arithmetic, relational, okay, bitwise, ternary. Okay, so perform all these programs, how to use these operators, and we will meet in our next session. Thank you, have a nice day.